Let us quickly revise diffraction. Definition: when an obstacle having size of order of wavelength of light is placed in the path of light, then light bends at the edge of the obstacle and enters into shadow region. This phenomena is called diffraction. Second definition is when a wavefront is partially obstructed, secondary wavelets originating from the exposed wavefront interfere on the screen and produce diffraction pattern. So actually diffraction is interference of secondary wavelets. कहाँ से आ रही हैं secondary wavelets? They are originating from exposed region of the wavefront. When a wavefront is partially obstructed by an obstacle, then secondary wavelets interference is diffraction. In our syllabus, Fraunhofer diffraction is in the syllabus, and in this the source of light and the screen is effectively at infinite distance from the slit or obstacle. So here, using two convex lens, we make the screen and the source effectively at infinite distance from the obstacle. So you need to remember that source and the screen are effectively at infinite distance in Fraunhofer diffraction. Then second thing they ask, which type of wavefront incident in Fraunhofer diffraction on the slit? Remember beta, since source is at infinite distance from the slit, so plane wavefront incident on the slit. Please remember this point. Maybe you get a 1 mark question from this point. There is only one derivation. डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंटर में एक ब्राइट मैक्सिमा मिलता है जो बहुत वाइड होता है, और उसके बाद छोटे छोटे डिम मैक्सिमा दोनों साइड में होते हैं. तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालने के लिए एक्चुअली हम स्क्रीन पर फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन निकाल लेते हैं. तो दोनों साइड में जो फर्स्ट मिनिमा होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वही सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हो जाती है. डेरिवेशन ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज एक्चुअली डेरिवेशन ऑफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन टू साइड्स. तो कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा और डेरिवेशन ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस दो तरह से पूछे जाते हैं पर डेरिवेशन एक ही है. तो कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा, एक स्लिट दिखाएंगे आप इस तरह से, ठीक है, ये स्लिट दिखाएंगे आप यहाँ पर और ये स्क्रीन दिखाएंगे. जॉइन द सेंटर ऑफ द ओपन स्लिट विद हेल्प ऑफ अ लाइन विद द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. देन जॉइन दिस पॉइंट ऑफ द स्लिट with the parallel line and this point of the slit with the parallel line. After that, we will divide width of this slit in two halves, this lower half and upper half. Now from the top of the upper half we will take a ray to a point P, and we will take from the top of the lower half a ray to point P. इतना कंस्ट्रक्शन समझ आया. उसके बाद ये जो लाइन थी जो स्लिट के सेंटर और स्क्रीन के सेंटर को ज्वाइन कर रही थी, यहाँ से इस लाइन को मान लो थीटा एंगल बन रहा है. P इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा. सिमिलरली नीचे भी सिमिट्रिकली P पॉइंट मिलेगा जहाँ फर्स्ट मिनिमा होगा. तो अगर हम ये वाली पोजीशन पता कर ले तो इसको डबल करते ही हमको सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ मिल जाएगा. तो हमको इसकी एंगुलर पोजीशन थीटा पता करनी है कि पहला मिनिमा कहाँ बन रहा है. तो जो कंस्ट्रक्शन किया देख लो, उसके बाद ये जो स्लिट की विड्थ है इसको हम A बोल देंगे. तो ये आधा पार्ट A/2, आधा पार्ट A/2. इसके बाद सेम लॉजिक कि अगर स्क्रीन स्लिट से बहुत दूर है, कैपिटल D इज मच लार्जर देन दी ओपनिंग स्लिट A, तो ये जो दोनों रेज हैं ये यहाँ इतने छोटे एंगल पर मिलेंगी कि थीटा विल बी टेंडिंग टू 0, और ये जो दोनों लाइंस हैं ये लगभग पैरेलल मानी जाएंगी. सो इफ दिस लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा विद दिस लाइन, देन दिस लाइन विल ऑल्सो मेक एंगल थीटा विद दिस लाइन. नाउ टू रेज आर पैरेलल, then what is the path difference between the two rays? यहाँ से perpendicular drop करो छोटी रे से लंबी रे पे. This triangle, this is theta, then this angle is 90 minus theta. This is 90, this is 90 minus theta, so this angle will be theta. बिल्कुल इंटरफेरेंस के केस की तरह. तो अब हम इस ट्राइंगल का हेल्प लेंगे. A/2 sin theta is this distance, this path difference between the two rays. A/2 sin theta. A/2 साइन थीटा पाथ डिफरेंस अगर यहाँ पहला मिनिमा प्रोड्यूस कर रहा है तो दो रेज पहला मिनिमा तब इंटरफेयर करके प्रोड्यूस करती हैं जब उनके बीच पाथ डिफरेंस सिंपल λ/2 होता है. बेटा याद रखना, पहला मिनिमा प्रोड्यूस होने के लिए पाथ डिफरेंस λ/2, दूसरा मिनिमा प्रोड्यूस होने के लिए नेक्स्ट ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 विल बी 3 λ/2. नेक्स्ट मिनिमा प्रोड्यूस करने के लिए 5 λ/2, और पहला मैक्सिमा तब पाथ डिफरेंस λ, दूसरा मैक्सिमा तब पाथ डिफरेंस 2 λ, तीसरा मैक्सिमा तब पाथ डिफरेंस सिंपल 3 λ.
तो a/2 साइन थीटा, ये यहाँ पर पाथ डिफरेंस अगर मिनिमा पहला प्रोड्यूस करे तो इसको बराबर होना चाहिए λ/2 के। बस इतना सिंपल डेरिवेशन है। अगर आपको क्लियर है तो आपका रिवीजन हो गया, अगर आपको क्लियर नहीं है तो नीचे के जो पॉइंट्स हैं उनको ट्राई करो कि लर्न कर लो। देखो डी तो इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है क्योंकि फ्रॉनहोफर कंडीशन ही है। तो अब क्या है कि दो रेज जो पी पर मिल रही हैं और पहला मिनिमा प्रोड्यूस कर रही हैं, उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, a/2 साइन थीटा। और a/2 साइन थीटा पहले मिनिमा के केस में हम θ1 लिख देंगे, a/2 साइन θ1 विल बी इक्वल टू λ/2 क्योंकि पहला मिनिमा प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और पहले मिनिमा की कंडीशन आ जाएगी a साइन θ1 इज इक्वल टू λ। अब अगर आप ध्यान करो तो पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू λ फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इन इंटरफेरेंस। यहाँ मैथमेटिक्स अप्लाई करने पर a साइन थीटा λ आ गया। यहाँ पर ये डार्क फ्रिंज का कंडीशन है, जबकि इंटरफेरेंस में ये फॉर्म ब्राइट फ्रिंज के कंडीशन के फॉर्म में आती है। फिलहाल पहले मिनिमा की पोजीशन आपको मिल गई, आप θ1 लिख सकते हैं साइन θ1 इज इक्वल टू λ/a। अब लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मच मच स्मॉलर देन द ओपनिंग ऑफ द स्लिट। तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो साइन θ1 या θ1 बहुत छोटा हो जाएगा, और अगर θ1 बहुत छोटा है तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। तो हमने कहा कि साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली θ1 ले ले, तो θ1 इज λ/a। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा इज λ/a। तो ऊपर स्क्रीन के सेंटर से ऊपर कितनी दूर पे हमको फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है, θ1 एंगल पर, और θ1 एंगल कितना आया, λ/a। तो सिमेट्रिकली नीचे भी हमको सेंटर से λ/a डिस्टेंस पर ही, एंगुलर पोजीशन पर ही पहला मिनिमा मिलेगा। दो मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है यही है एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो मोस्टली हम एंगुलर विड्थ के टर्म्स में डिफ्रैक्शन में क्वेश्चन पाते हैं, तो जस्ट ट्वाइस θ1 विल बी एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सो 2 λ/a इज एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, राइट। अब इस पे बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि अगर स्लिट विड्थ को कम करें तो क्या होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बढ़ेगी और सेंट्रल मैक्सिमा स्क्रीन पे फैलता जाएगा। इफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंक्रीज्ड, मान लो रेड कलर को ब्लू कलर से चेंज कर दिया, लैम्डा को बढ़ा दिया, देन लैम्डा इंक्रीजेस, देन अगेन सेंट्रल मैक्सिमा विड्थ विल इंक्रीज। अब बहुत कम समय में हम कई क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस कर सकते हैं। इफ क्वेश्चन इज दैट फाइंड द nth मिनिमा पोजीशन, तो आपको बेटा बस एक लाइन ये लिखनी है, टू फाइंड कंडीशन फॉर सेकंड मिनिमा वी डिवाइड द स्लिट इन 4 इक्वल पार्ट्स एंड वी गेट द कंडीशन ऑफ सेकंड मिनिमा a sin θ2 is equal to 2 lambda, and then we will write on the same pattern the nth minima condition will be a sin theta n is equal to n lambda। अगर आपका ये डेरिवेशन ये चैप्टर बहुत अच्छा प्रिपेयर नहीं है तो फिर जितने पार्ट पे मैंने इम्फेसिस दिया है उतना ही पार्ट प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी कम है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जरूर याद कर लो। सेंट्रल बड़ा मैक्सिमा मिलता है, चौड़ा मैक्सिमा। पहले मिनिमा की पोजीशन देखो, याद करो, अभी अभी हमने निकाली थी λ/a, दूसरा मिनिमा 2 λ/a पे, तीसरा मिनिमा 3 λ/a पे, और ये जो मैक्सिमा सेकेंडरी मिलते हैं इनकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से काफ़ी कम होती है। तो ये पैटर्न वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पे पोजीशन ऑफ मिनिमा एक्चुअली आप लेबल करेंगे, λ/a, 2 λ/a, 3 λ/a और 0 फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा। ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न। इस एक न्यूमेरिकल को हम एक बार देख लेते हैं। आई होप कि आपको जो न्यूमेरिकल मिलेगा वो आप कॉन्सेप्ट इसका समझने के बाद कर पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो वेवलेंथ दी हुई है, स्लिट विड्थ दी हुई है और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछा है। नाउ रिमेंबर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 λ/a, है ना। तो 2 λ/a एंगुलर पोजीशन है। तो आप सबसे पहले अपने ओरिजिनल उस पर चले जाओ कि पहला जो मिनिमा मिला था वो क्या था, a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू λ/a, फिर हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज करके थीटा इज इक्वल टू 2 λ/a किया था। तो λ/a, लैम्डा की वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी SI यूनिट्स में, तो 0.5 मिलेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0.5 यानी हाफ आई, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो अगर एंगुलर विड्थ कहेंगे तो 2 थीटा विल बी एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, दैट इज 60 डिग्री, राइट। वैसे मैंने डिटेल में ये दोनों ही चैप्टर्स और हाइगन्स वेव थ्योरी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम केवल उन पर जा रहे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ सोर्स इज यूज्ड इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज इट्स पोजीशन। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज यूज्ड एंड द सोर्स इज इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन।
Then remember what happens to diffraction pattern when another parallel slit is made close to the first slit. एक स्लिट के बगल में पैरेलल दूसरी स्लिट ओपन कर दे तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बन जाता है. आपको जो लाइन लिखनी है इसके आंसर के लिए सिंपल है. इंटरफेरेंस पैटर्न सुपर इम्पोजेज द डिफ्रैक्शन पैटर्न व्हेन टू स्लिट्स आर ओपन पैरेलल. बट इफ वन स्लिट इज क्लोज्ड then diffraction pattern appears on the screen. Then difference between interference and diffraction. ये years देख लो, इसलिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ये क्वेश्चन भी. Interference is modification of intensity of light due to superposition of secondary wavelets originating from two coherent sources. While diffraction is interference of secondary wavelets originating from same wavefront when that wavefront is partially obstructed by an obstacle. Definition of the two will be first difference. If only one difference is asked, then just write these two. Then if two differences are asked, that intensity distribution curve of the two will be difference. Intensity of all bright fringes in interference pattern is same, while most of the intensity is concentrated in central maxima in diffraction pattern, and other maxima are having much less intensity in comparison to central maxima. ये difference है interference और diffraction pattern के intensity distribution curve का. And last question I want to mention, what happens when white light is used in place of monochromatic light either in Young's double slit experiment or in single slit diffraction pattern. In both the cases the center bright fringe will be white and on two sides you will get colored fringes like this.